अब हम करेंगे इस पोइम की समरी, जो कि हमें एग्ज़ाम्स में भी कंपलसरी क्वेश्चन के तौर पर आती है। और इसकी समरी जो है बोर्ड पर मैं लिखती जाऊंगी, साथ साथ मैं उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। द पोइम स्टॉपिंग by words on a snowy evening has been written by Robert Frost. The well-known American poet. The main theme of the poem revolves round a traveler who is passing through woods which are lovely, dark and deep. ये इसका फर्स्ट वन पैसेज है, और हम पहले इसको देखते हैं। द पोइम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये नज़म एक बर्फानी शाम को जंगल के पास रुकना, हैज़ बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, इसको रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है। द वेल नाउन अमेरिकन पोइट, एक बहुत जाना पहचाना अमरीकी शायर। द मेन थीम ऑफ द पोइम, इस नज़म का मरकजी ख्याल रिवॉल्व्स घूमता है, राउंड अ ट्रैवलर, एक सफर करने वाले के इर्द गिर्द, हु इज पासिंग, जो कि गुजर रहा है, थ्रू वुड्स, जंगलात में से, विच आर लवली, डार्क एंड डीप, जो कि बहुत खूबसूरत, गहरा और तारीक है। इसका पैसेज नंबर 2 अब हम देखेंगे समरी का। The woods are so enchanting and awe-inspiring that the poet
is compelled to stop his horse to stare at the beauty of the woods. It is one of the darkest evening of the year. Snow falling is in its full swing. Snow flakes are downy. His pony horse is thinking it queer to stop by the forest without a farmhouse nearby. The woods are so enchanting. जंगलात बहुत ही ज़्यादा दिलकश हैं and awe inspiring और बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कुन. That the poet is compelled कि शायर मजबूर हो जाता है to stop रुकने के लिए. His horse अपने घोड़े के साथ to stare घूरता रहता है at the beauty खूबसूरती को of the woods जंगलात की. It is one of the darkest evening. ये तारीक तरीन शाम है of the year साल की. Snow falling बर्फ का गिरना is in its full swing अपने पूरे जौबन पर है. Snow flakes बर्फ के गाले are downy बहुत ही ज़्यादा नरमो नाजुक है. His pony horse उसका छोटा सा घोड़ा is thinking सोच रहा है it queer to stop by the forest without a farmhouse nearby. बहुत ही ज़्यादा अजीबो गरीब है फार्म हाउस के बगैर ऐसी जगह पर रुकना. अब हम देखेंगे इसका पैसेज नंबर 3. There is a frozen lake beside the woods. There
are sounds of the harness bells of his house, and the wind blowing through the trees. There is a frozen lake. यहाँ एक जमी हुई झील है beside the woods, जंगलात के साथ. There are sounds of the harness bells of his horse. और उसके घोड़े की घंटियां हैं. And the wind blowing through the trees. और हवा जो है वो जंगलात दरख्तों के बीच में से गुजर रही है. अब हम देखते हैं इस समरी का पैसेज नंबर 4. The traveler is wondering about the ownership of the woods that who is the owner of the woods. He probably knows the owner of the woods who is living in the village. The traveler is wondering about the ownership of the woods. सफ़र करने वाला जो है वो जंगलात के बीच में खड़ा होकर वो ये सोच रहा है कि ये इसकी मलकियत किसकी है. That who is the owner of the woods? इन जंगलात का मालिक कौन है. He probably वो गालिबन knows जानता है. The owner of the woods इन जंगलात का मालिक who is living in the village जो कि एक गांव में रहता है. इस समरी का है अब पैसेज नंबर 5 हमारे पास. The poet
is deeply fascinated by the natural beauty of the woods. These lovely, dark and deep woods attract him so much, but he has much more important business to do. He has to go a long way before taking rest. The poet शायर is deeply fascinated, बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है by the natural beauty, कुदरती खूबसूरती से of the woods, जंगलात की. These lovely, ये प्यारे खूबसूरत dark, तारीक and deep woods और घने जंगलात attract him, उसे बहुत ही ज़्यादा attract करते हैं, दिलकशी की तरफ माइल करते हैं, so much बहुत ज़्यादा, but लेकिन he has much more important business, उसके पास बहुत ही ज़्यादा करने के लिए ज़रूरी काम है, to do करने के लिए, he has to go, उसे जाना होगा, a long way, बहुत ही लंबे रास्ते पर, before taking rest, और जाने से पहले वो रेस्ट करेगा. समरी का नेक्स्ट वन पैसेज हम देखेंगे, 6-1 पैसेज. Sleep in this poem is a symbol of everyday sleep and also it stands for the eternal sleep that is death. Sleep in this poem, इस नज़म में नींद is a symbol, एक अलामत है of everyday sleep, हर रोज़ सोने की,
एंड ऑल्सो इट स्टैंड्स, और इसके साथ साथ ये भी बताती है फॉर द इटर्नल स्लीप ऑफ द नीड दैट इज डेथ, जो कि मौत कहलाती है। और इस समरी का लास्ट वन पैसेज है, द पोएम इज एन excellent and beautiful piece of poetry. It is no less than a symbolic masterpiece. The poem is an excellent, ये नज़म एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एंड ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत पोइट्री शायरी का एक हिस्सा है। इट इज़ नो लेस दैन अ सिम्बॉलिक मास्टरपीस, ये एक अलामती शाहकार से कम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये थी इसकी समरी जिसको मैंने वन बाय वन पैसेज के साथ लिखकर मैंने एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको इसको पढ़ने में या सुनने में कोई एम्बिग्विटी ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी सवाल के लिए आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।